عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا اور رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے عطا فرمائے جس میں بخشش کا کھلا اعلان. میرے محترم بزرگوں دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں نے رمضان مبارک کے 18 روزے گزار دیے، یعنی 18 دن گزر گئے رمضان مبارک کے. ابھی ہمارا دوسرا عشرہ چل رہا ہے. ایک دن کے بعد یہ عشرہ بھی ختم ہو جائے. پہلا عشرہ تھا رحمت کا، وہ بھی ختم ہو گیا. اب یہ جو چل رہا ہے 2 دن جو بچا ہوا ہے مغفرت کا، یہ عشرہ بھی 2 دن بعد ختم ہو جائے. اور میرے دوستو، جو اگلا عشرہ ہے آگ سے خلاصی کا، یہ کتنا بڑا عشرہ ہے. یہ 10 دن کتنا معتبر، کتنا بابرکت، کتنا قابل لحاظ، کتنا ہم سب کے لیے اس میں خوشخبری ہے. ہم سب اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کو اندازہ کرنے کے لیے ہم تھوڑی باتوں پر غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس عشرے کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں ہی شب قدر آتی ہے. اس عشرے میں ہی شب قدر آتی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کتنی بڑی رات ہے، کتنا یعنی عزت والی رات ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں کیا کیا خوشخبریاں ہیں. ہم سب ہر رمضان میں اکثر سنتے ہی آتے ہیں. میرے دوستو، جان لیں کہ شب قدر کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو انعام کے طور پہ دیا اور اس میں کیا خوشخبری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امتیوں کے عمروں کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہے نا. ایک یہودی کے بارے میں بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے صرف 40 سال تک صرف عبادت کرتے رہے. 40 سال تک، ہماری عمر بھی نہیں اتنی، لیکن وہ 40 سال تک صرف عبادت کرتے رہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. میرے دوستو، جب صحابہ کرام کے سامنے ان امتوں کی عمروں کے بارے میں بتایا، ان کے بارے میں کہا، بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، تو صحابہ کرام کو یہ رشک ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو اتنے زیادہ عمر والے تھے اور ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوتی، ان کی نماز بھی زیادہ، ان کے روزے بھی زیادہ، ان کی تسبیحات بھی زیادہ، سب زیادہ تھا. ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کی عمر تو اتنی ہے نہیں اور وہ ساری نیکیاں ہم لوگ کر بھی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ تو پیچھے رہ گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی
अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि ये आयत नाज़िल हुई और इस आयत यानी पूरे सूरत में हम सब के लिए और पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी रख दिया। कहा कि तुम्हें इस बात का की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि पहले के लोगों की उम्रें ज्यादा हुआ करती थी, पहले लोग ज्यादा इबादत करते थे, उन्होंने अपनी झोलियां भर लिया, इबादत करके अल्लाह को राजी कर लिया। नहीं मेरे उम्मतियों, नहीं मेरे बंदो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे सूरत में कहा कि तुम यानी किस रात को सिर्फ इबादत कर लेते हो, एक रात की बताया। पूरे उम्र में न जाने कितने शब कदर आएंगे, कितनी रातें मिलेगी, वो अलग बात है, लेकिन कहा कि सिर्फ और सिर्फ तुम एक इसकी शब कदर की एक रात को पालो, इसमें एक रात को इबादत कर लो, तो कहा जाता है कि तुम्हें 2 हज और 2 उम्रे करने का सवाब मिलेगा। और उसी तरह ये भी कहा कि तुम्हें 80 साल कोई शख्स इबादत करे वो उसका सवाब उतना मिलेगा। और बहुत सी बताया कि इसके सवाब के बारे में हदीस में और खुलासा में जाएंगे, तफसीर में जाएंगे, तो इतना ज्यादा सवाब बताया कि आदमी एक रात को भी पाले तो उन लोगों से आगे निकल जाए। अब सोचने वाली बात है कि वो लोग 80 साल सिर्फ इबादत में गुजार देते थे, 40 साल तक सिर्फ इबादत में गुजार देते थे, और हम तो सिर्फ एक रात इबादत करने में उतना ज्यादा सवाब अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दे रहे हैं। ये हम सब के लिए एक इनाम ही तो है। ये क्या है मेरे दोस्तों? अब ये अलग बात है कि हम सब इस चीज की कदर नहीं कर रहे हैं, हम जब इसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, हमारे नजर में इसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं है, ये हम सब की खता है, हम सब की रखती है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए यानी हम सबको, तमाम उम्मत मुहम्मदिया को खुशखबरी में सुना दी गई। अब इसको अपने लिए खैर का बाइस बनाना या शर का बाइस बनाना ये हमारे ऊपर है मेरे दोस्तों। इसलिए हम सब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, कभी वो अशरे नहीं आया है, अब वो आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी रातों में इबादत करने का मौका नसीब करे, है ना। और दूसरी होता है कि एतकाफ के बारे में भी बहुत ज्यादा फजीलत आई है, और ये एतकाफ के 3 तरह के होते हैं। एक वाजिब होता है, एक यानी वाजिब, नफिल और सुन्नत। जो हमने ये जो रमजान मुबारक का जो 10 दिन का एतकाफ है, ये सुन्नत मुअक्किदा है ना, और वाजिब उसको बोलता है नजर का एतकाफ होता है। जैसे मन्नत जिसको बोलते हैं, नजर में होता है मन्नत, कि मन्नत करके कि आका मैंने ये फलाना काम हो जाए, फलाना ये हो जाए, तो मैं इतने दिन का एतकाफ करूंगा। ये सब चीजें, इस चीज का मन्नत जायज है कि इबादत करने का, नमाज पढ़ने का, रोजे रखने का, सदाकात करने का, ये सब मन्नत जायज है। और उसी तरह दूसरा क्या है कि दूसरा नफिल वो है, कभी भी रमजान में हो, बगैर रमजान में हो, तो वो यानी कभी भी हो सकता है, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, बल्कि उससे भी कम का एतकाफ होता है। जैसे हम आ रहे हैं, बस एतकाफ की नियत कर लिए, तो ये भी एतकाफ में आ जाता है। वो कभी भी हो जाता है, रमजान के अलावा, रमजान में, पूरे रमजान में कभी भी। लेकिन जो सुन्नत मुअक्किदा असल एतकाफ की ज्यादा फजीलत जिसका बताया गया है, वो यही एतकाफ है कि यानी तीसरा असर जो चालू होता है रमजान मुबारक का, उस वक्त यानी 10 रमजान के 20 रमजान के असर के बाद, यानी 21वीं जो तारीख चालू होती है चांद की, वहां से लेके यानी चांद रात के तक, इसको ये जो 10 दिन का एतकाफ होता है, कहा जाता है कि इसका सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए आप मस्जिद में बैठ जाना, उन तमाम यानी नेकियां जो आप नहीं किए हो उनका भी सवाब मिल जाता है। जैसे आप क्या कहता है, कोई जनाजा में जाना था, नहीं जा पाए, उसका आप सिर्फ बैठे बैठे आपको सवाब मिल गया। उसी तरह और क्या कहता है, कोई मरीज था, उनकी इजाजत के लिए जाना था, वह नहीं जा पाए, उसका सवाब आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। और दूसरा, इसमें 2 खुशखबरी बताया। सबसे पहले खुशखबरी ये कि हम इसमें गुनाहों से बच पाएंगे, भले अपने यानी मस्जिद के अलावा कहीं और रहेंगे तो जाहिर है कुछ न कुछ गुनाह हमसे सरजद हो ही जाएंगे। पहले की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप गुनाहों से बच जाएंगे। दूसरा ये कि आप इन जो इबादतों के इतने सारे जो सवाब है, उसका आपके झोली में, आपके नेकनामे आमाल में सारे सवाब दर्ज हो जाए। इसके भी फजीलत के बारे में आया है कि 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। और बताया कि और 40 दिन इस्लामी सरहद यानी इस्लामी कोई मुल्क हो और क्या कहता है उसके सरहद में
इबादत की में उसमें भी सवाब का है। अगर 40 दिन और इस्लाम की सरहद पे हिफाजत करने का सवाब मिलता है। तो ये सब सवाब या सिर्फ आप यहाँ रहकर जो इबादत करेंगे वो आपका सवाब तो होगा ही, लेकिन अगर खाली वक्त में भी बैठे रहे फिर भी आपको ये नेकियां आपके नए अमल में मिल जाती है। उसी तरह मेरे दोस्तों हम सब इसका सबसे बड़ी एहतिकाफ की फजीलत ये बताया कि और वजह भी है कि शब-ए कदर जो रात थी, अभी इससे पहले जो फजीलत के बारे में बताया गया, शब-ए कदर कितनी बड़ी रात है ना, कि एक रात इबादत करने का इतना ज्यादा सवाब है, इतना ज्यादा नेकियां है। तो कह रहे हैं कि अगर हम एहतिकाफ में रहे और मस्जिद में रहे तो जाहिर है कि इबादत करेंगे, चाहे अगर सो के भी रहे फिर भी वो इबादत में गिना जाता है। तो वो किस वजह से? एहतिकाफ की वजह से। अब बताइए अगर कोई एहतिकाफ में बैठा रहे तो इसको जाहिर है कि शब-ए कदर की रात मुयस्सर होगी कि नहीं, उसमें इबादत करने का मौका मिलेगा कि नहीं। अगर हम एहतिकाफ में नहीं रहते हैं तो मन करेगा तो घर भी चले जाएंगे, सो भी जाएंगे और भी काम कर लेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स एहतिकाफ में है तो वो ये इस मर्तबे को जरूर पा जाए। तो इसलिए दोस्तों हम लोग कोशिश करें कि ये सिर्फ और ये सबसे बड़ी बात कि एहतिकाफ में हम लोग सोचते हैं तो कोई गांव का मोहल्ले का कोई बूढ़ा आके वही नहीं। मेरे दोस्तों आप बाहर यानी जगह में जाएंगे, बिहार के अलावा या बिहार में भी बहुत सी ऐसी जगह है कि वहाँ नौजवानों की टोली बनी होती है, शौक से लोग एहतिकाफ में बैठते हैं। उससे क्या एक माहौल बना रहता है, हम उम्र लोग रहते हैं तो ये क्या ये इबादत करने का भी, नेकियां जमा करने का भी, ये तो सबसे इबादत तो कहा ही कर रहा है कि जवानी की इबादत सबसे ज्यादा काबिल कबूल है। तो वो सारी चीजें माहौल बन जाता है तो आदमी सबसे उस काम को कर लेता है, यानी कोई आदमी ना चाहते हुए भी कर लेता है। क्या होता है कि सब आदमी मिल गए, यानी हमारी राय है कि हम लोग कोशिश करें कि हम सब जो नौजवान है, ऐसा तो नहीं है कि भाई सबको ड्यूटी लगी हुई है ना, ये अगर कोई खाली है अपने वक्त को उधर गुजारेंगे, उससे अच्छा है कि ये किसी मस्जिद में अपनी इबादत गांव में एहतिकाफ की जगह में गुजार लें तो कितना ज्यादा सवाब होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात ये सुन्नत मुअक्किदा है, लेकिन अगर ये एक आदमी भी पूरे मोहल्ले का एक गांव का कर लेता है तो सबके तरफ से अदा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक आदमी बैठ गया तो सबके तरफ से नेकियां कमा लेगा, ऐसा तो नहीं है। वो अगर इबादत करेगा आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभा पाएगा, जो उनका सवाल है उस काम के करने का वो आपको थोड़ी ना दे देगा। इसलिए हम सब भी कोशिश करें कि एहतिकाफ में बैठ के शब-ए कदर की रात में इबादत करें। और सबसे यानी अहम बात ये थी कि ज़कात का मामला होता है, वक्त कब है, लेकिन ज़कात एक सबसे बड़ी बात जान लेने की है कि ज़कात कोई रमजान की चीज नहीं है कि सिर्फ रमजान में ज़कात अदा किया जाता है, ज़कात दिया जाता है, नहीं मेरे दोस्तों। ज़कात का तो मसला ये है कि जब आपके पास ये हो जाए, यानी आप उस मकाम तक पहुंच जाए, यानी जैसे बताया गया कि 52 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, इस मिकदार का आपके पास माल हो जाए, या फिर इससे पैसे हो जाए, या फिर वो चीज आपके पास है, जब हो जाए चाहे किसी महीने में हो किसी दिन भी हो, उसी वक्त ज़कात अदा करने का हुक्म है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जब रमजान आता है उसी में सिर्फ ज़कात अदा किया जाता है। तो हाँ, ये अलग बात है कि इस महीने में अगर कोई ज़कात अदा करता है तो अब ये तो इस महीने में एक नेकी का 70 नेकी है। अगर एक आदमी ज़कात अदा करता है एक बार का तो ये 70 बार ज़कात अदा करने का सवाब मिलेगा। ये अच्छी बात है, रमजान में इबादत यानी ज़कात अदा करना है तो इसका ज्यादा सवाब है। लेकिन ज़कात का ऐसा मसला है कि जब आप साहब माल हो जाते हैं उसी वक्त अदा है ना। और इसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं कि कौन से माल में ज़कात अदा करना है। जैसे आपके पास घर है तो घर का ज़कात अदा नहीं करना है, लेकिन आपके पास एक घर है रहने का, उसके अलावा दूसरा घर है, 2 है, 3 है और उसमें किराया लगा है या ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आपके इस्तेमाल के अलावा जो चीज है उसमें भी ज़कात है, उसमें भी ज़कात है। लेकिन हम लोग इस चीज का ध्यान नहीं करते, बस पैसा उसका ज़कात निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों उससे अगर कोई तिजारत कर रहा है, दुकान है, दुकानदारी है, तो दुकान में जितना सामान है, तिजारत है, बेचने वाला सामान, उन सब का आपको जोड़ के उसमें का भी 2.5% निकालना होगा, वो भी ज़कात, उसका भी ज़कात है। उसी तरह जानवरों का भी ज़कात है, हर चीज का ज़कात है। तो लेकिन ज़कात सिर्फ पैसे का नहीं है, सिर्फ सोने चांदी का नहीं है। और उसी तरह औरतों में एक मसला ट्रेंड चल रहा है एक बात का कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो जेवर, उसका ज़कात नहीं अदा करते, जो रखा हुआ है अटैची में बेटी में, सिर्फ उसका ज़कात सोचते हैं अदा है।
या ज़कात अदा करना, है ना। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। और जो फितरा का ऐलान आया है, एक यानी हर शख्स का यानी 60 रुपए यानी फी मतलब ये शख्स है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको शब कदर की रात में इबादत करने का भी मौका दे और कोशिश करके हम सबको इत्तिकाफ में बैठने का मौका दे। अल्लाह तबारक व तआला मौका तो है, लेकिन अपने नफ्स की बात है, हम सब जितना अपने से कोशिश करेंगे तो ये चीजें हासिल होगी। वरना फिर ये जैसे आती है हमेशा आती है चली जाती है, वैसे ये भी है 10 दिन बचे हैं वो भी गुजर जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसकी कदर करने की तौफीक दे।